नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिला पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों का खुलासा किया। अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि इस बजट में बीदर जिले के लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है। सिद्धरामैया ने पेश किया कर्नाटक का बजट, जाने 3,27,000 करोड़ रुपए के पिटारे में किसके लिए क्या। सिद्धरामैया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोला हमला, कहा समान व्यवस्था भारत को शोभा नहीं देती। करों में वृद्धि न करे, बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से कहा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अवैध रूप से हैदराबाद बॉम्बे में ड्रग्स ले जा रहे 2 आरोपियों को हुमनाबाद शहर के रमना और राजा कॉलेज के पास से कुल 499 ग्राम साइकोट्रॉपिक ड्रग्स सबाटांस एमडी मेथाम्फेटामाइन एक बेलेनो कार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एसएल ने कहा कि जब्त की गई छोटी विंटेज कार की कुल कीमत 55,08,500 रुपए है। वो शुक्रवार को बीदर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। जिला पुलिस विभाग द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के 2 मामले, एक हत्या और एक चोरी सहित कुल 4 अलग अलग मामलों की जांच की गई है। चूंकि बीदर जिला अन्य राज्यों की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए हाल ही में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क का तेजी से पता चला है। उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में बीदर जिला पुलिस भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। संवाददाता खुसरू अहमद और कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇವತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ದಿನ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ASP ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಶಿವಾಂಶು ರಜಪೂತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 499 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಮೆಥಾಮೆಫೆಟಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಮೆಥಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, MDM ಅಂತ ನೀವು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರೇ ಇದೆ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್। ನಮ್ಮದು NDPS ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ। ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಅದು ಈ ಪೌಡರ್ ಇದ್ರ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 499 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು MDMನ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದವನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಹೀರಾಬಾದ್ನವನಿದ್ದಾನೆ। ಈ ಕುರಿತು 2 ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 49,90,000 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂದರೆ ಡ್ರಗ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇನ್ನು 2ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇದು ಗಾಂಜಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು 23 kg 498 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ಕೂಡ 23 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। 3ನೇದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಜರುಗಿತ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ DSP ಬೀದರ್ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು PSI ಕಿರಣ್ ಅವರ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಉಸ್ತುವಾರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಸನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಮೃತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ವೈಫ್ಗೂ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅದನ್ನು ಮೃತನಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ನಿಂದ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा पेश किए गए बजट को जन विरोधी बजट करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा पेश किए गए बजट से सीमावर्ती बीदर जिले के लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्योंकि जिले में 2 मंत्री हैं, इसलिए ये उम्मीद भी टूट गई है कि वे जिले के लिए नई परियोजनाओं समेत कुछ बम्पर लाएंगे। बीदर के लिए एक मामूली बजट है। करंजा जलाशय के बैकवाटर क्षेत्र के कई किसानों ने अपनी जमीन खो दी है और गंभीर संकट में है। जिन लोगों ने अपनी जमीन खो दी है उन्हें वैज्ञानिक मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गारंटियों को निधि देने के लिए विकास तैयार किया गया है। जिले के किसानों की समृद्धि के लिए सिंचाई योजना पर जोर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कामकाजी हाथों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीमा क्षेत्र में उद्योग लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पर्यटन विकास भी उपेक्षित है। इस बजट में राज्य की जनता के लिए कोई दावा करने की योजना नहीं है। ये जन विरोधी बजट है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा आज अपनी 14वीं बजट प्रस्तुति में कर्नाटक क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन बोर्ड की स्थापना करने का स्वागत किया। कई वर्षों की मांग बीदर नगर डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल को CDC द्वारा मिठाइयां बांटी गई, पटाखे जलाए गए। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक इकाई के आयोजन सचिव जॉन वेस्ले ने क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन बोर्ड के गठन का स्वागत किया। इसके अलावा ईसाई मित्र सुनील बच्चन, विलियम होस्मानी, गोरान लल्ली, वसंत चिद्री, वसंत बक्काचोड़ी, रिजर्ड सोरालिकर, राजू कोलार, प्रवीणा हल्लादेकरी, इस पर सभी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का धन्यवाद किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय के प्रभारी सिद्धरामैया ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट विधानसभा में आज पेश किया। सिद्धरामैया ने राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री के तौर पर अपना 14वां बजट पेश करने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड बनाया। सिद्धरामैया से पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। बजट पेश करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 5 गारंटी के जरिए सालाना करीब 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनसे 1,30,00,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। सिद्धरामैया ने पेश किया 3,27,747 करोड़ रुपए का बजट। इस बार सिद्धरामैया ने 3,27,000 करोड़ रुपए के आवंटन वाला बजट कर्नाटक विधानसभा में पेश किया। इस दौरान सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार की 5 गारंटियां मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये कर्नाटक की गरीब जनता की सोशल सिक्योरिटी है। हर परिवार को प्रति माह मिलेंगे 4 से 5,000 रुपए। 52,000 करोड़ इन गारंटियों पर सालाना खर्च होगा। इससे 1,30,00,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर परिवार को प्रति महीने 4 से 5,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानों के लिए नवोद्यमा स्कीम सिद्धरामैया ने इस बजट में कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए नवोद्यमा स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत किसानों के उत्पादों को नंदिनी की तर्ज पर सरकार प्रोत्साहन देगी। इसके लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार 85,818 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी।
कर्नाटक में शराब हुई महंगी, साथ ही संपत्ति की गाइडलाइन वैल्यू को रिवाइज किया जाएगा। इस बजट में स्टेपेंड रजिस्ट्रेशन से 25,000 करोड़ रुपए राजस्व कमाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इंडियन मेड शराब की कीमतों में 18% की बढ़ोतरी की जाएगी, तो वही बियर 15% महंगी हो जाएगी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होगी फिर से शुरू। वहीं केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया था। कर्नाटक की सरकार 60 करोड़ की ग्रांट के साथ इस योजना को फिर से शुरू करेगी। अल्पसंख्यक छात्रों को ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन, इसके अलावा अब 2% ब्याज पर अल्पसंख्यक समुदायों के स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए 20 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। सभी धर्मों के लिए भी खोला खजाना। सिद्धरमैया ने इस बजट में राज्य ईसाई विकास कॉर्पोरेशन बनाने का ऐलान किया। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वहीं 40,000 वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए साल 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं राज्य में गुरुद्वारों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। जैन तीर्थ के लिए 25 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने मोरल पुलिसिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमला करते हुए कहा कि संघीय प्रणाली के साथ असंगत है और इसमें कई विसंगतियां हैं जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करती है। विधानसभा में अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य के स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। वित्त विभाग संभालने वाले मुख्यमंत्री ने कहा, नई नीति राज्य में उच्च शिक्षा मानकों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएगी और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और सार्थक रोजगार के अवसर हासिल करने के लिए सशक्त बनाएगी। सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संघीय शासन प्रणाली के साथ असंगत है। इसमें कई विसंगतियां हैं जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने आगे कहा, समान शिक्षा प्रणाली भारत जैसे विविध धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है।
इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अपने बजट में पूंजी निवेश के लिए आवंटन कम नहीं करने और करों में बढ़ोतरी करके लोगों पर बोझ नहीं डालने का सुझाव दिया। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के भाषण का जवाब देते हुए कहा, राज्य सरकार को लोगों पर अधिक कर लगाए बिना और अधिक ऋण उठाए बिना 5 गारंटी लागू करनी चाहिए, अन्यथा वे जन विरोधी गारंटी बन जाएगी। उन्होंने दावा किया कि महामारी के बाद कर्नाटक की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मैंने सरप्लस बजट पेश किया था क्योंकि हमें अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ था, इसलिए गारंटी लागू करने के बहाने कर वृद्धि नहीं लगाई जानी चाहिए, जो कि लगभग आधा वित्तीय वर्ष गारंटी के बिना समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने पहले ही कुछ शर्तें लागू कर दी है। उन्हें 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है और बिक्री कर, वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और मोटर वाहन कर सहित कर भी बढ़े हैं और सरकार को अधिक ऋण उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर है 9% पर, जबकि देश की जीडीपी 7% पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महंगाई के लिए केंद्र की आलोचना की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए पिछली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को केंद्र की तेज मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल होने के लिए आलोचना की और राज्य की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने के लिए पिछली भाजपा सरकार पर हमला बोला। केंद्र सरकार 2022-23 के दौरान आवश्यक वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रही। सिद्धरामैया ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा, आम आदमी कीमतों में भारी वृद्धि से गंभीर रूप से परेशान है। उन्होंने कहा, आम आदमी को ऐसे प्रतिकूल माहौल से बचाना 5 गारंटी कांग्रेस के चुनावी वादे के पीछे प्राथमिक प्रेरणा रही है। 5 गारंटी है, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीबों को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, घर की महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपए और 3,000 रुपए तक का बेरोजगारी लाभ। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भले ही कर्नाटक केंद्र के राजस्व संग्रह में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है, विभाज्य पुल का केवल 3.65% केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित किया जाता है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विधायकों ने विधानसभा में कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पेयजल संकट और सूखे का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित करे। शून्यकाल में ये मुद्दा उठाते हुए अफजलपुर विधायक अल्लमा प्रभु पाटिल ने कहा कि भीमा नदी सूख गई है। समय तक हमें आमतौर पर 74 mm बारिश होती है, लेकिन इस साल हमें केवल 24 mm ही बारिश हुई है। इस समय तक हमारे किसान 8.87 लाख हेक्टेयर यानी कि 8,87,000 हेक्टेयर में बुआई पूरी कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने केवल 25,000 हेक्टेयर में ही बुआई की है। किसान संकट में है। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार सूखा घोषित करे। आलंद विधायक बीआर पाटिल ने कहा कि पेयजल की गंभीर समस्या है। यादगीर से जेडीएस विधायक शरण गौड़ा कांडकुर ने कहा, कम बारिश के कारण किसानों को अपना जीवन समाप्त करना पड़ सकता है। पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून में 10 दिन की देरी हुई। उन्होंने राज्य सरकार से मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर कार्य योजना तैयार नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा, खासकर उत्तरी कर्नाटक के जिलों में पानी की भारी कमी है। उन्होंने सरकार से पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति तालुका 50 लाख रुपए की घोषणा करने की मांग की।
राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने अपने जवाब में कहा, पिछले 10 दिनों से राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी अगले 10 दिनों तक अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है। हम 1 सप्ताह और इंतजार करेंगे और सूखा प्रभावित तालुकों पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 193 गांवों को टैंकर से और 339 गांवों को बोरवेल से पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा, अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होने पर 24 घंटे के भीतर पानी की आपूर्ति की जाए। मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव और भाजपा और कांग्रेस सदस्यों के बीच श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसका उद्घाटन कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने किया था, लेकिन अभी भी बंद है। संस्था का इरादा चिक्काबल्लापुरा में सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मस्थान मुद्देनाहल्ली में एक मुफ्त मेडिकल कॉलेज शुरू करने का है। कांग्रेस विधायक टीबी जयचंद्र ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा, पीएम मोदी ने मार्च 2023 में इसका उद्घाटन किया था। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो मुफ्त चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अगले 10 दिनों में मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा, कॉलेज अधिकारी केवल अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति क्यों नहीं दी गई? आपकी सरकार न तो गारंटी योजनाएं लागू करती है और न ही ऐसे महान स्थानों के लिए अनुमति देती है। चिड़ा हुआ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब इमारत का उद्घाटन किया गया था, इससे तीखी नोकझोंक हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा, इसे प्राप्त कर रहा हूं और स्थिति की जांच करूंगा। केआरएस में डिज्नीलैंड पार्क योजना, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि सरकार 1425 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मांड्या में केआरएस बांध पर एक डिज्नीलैंड जैसा पार्क स्थापित करेगी। स्पष्ट करते हुए कि परियोजना से बांध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्क 198 एकड़ में स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, परियोजना मूल्यांकन समिति को त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में किसी भी फर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए ने केसीईटी सीट के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आरडी नंबर सही करने की अनुमति दे दी है। विज्ञप्ति में केईए ने गुरुवार को कहा कि पोर्टल इस उद्देश्य के लिए 16 जुलाई शाम 6 बजे तक सक्षम है। उम्मीदवार जिन्होंने केसीईटी 23 आवेदन पत्र में श्रेणी का दावा किया है और जिनका आरडी नंबर अमान्य के रूप में प्रदर्शित है, वे इस अवसर का उपयोग अपने सही आरडी नंबर दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवारों को पहले 7 से 12 जून तक अपनी सही आरडी नंबर दर्ज करने का समय दिया गया था। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर जिला पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों का खुलासा किया। अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि इस बजट में बीदर जिले के लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है। सिद्धरामैया ने पेश किया कर्नाटक का बजट, जाने 3,27,000 करोड़ रुपए के पिटारे में किसके लिए क्या। सिद्धरामैया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोला हमला, कहा समान व्यवस्था भारत को शोभा नहीं देती। करों में वृद्धि न करे, बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से कहा। केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।